In this lecture, I will discuss with you some examples on Jacobian. Firstly, we will recall the definition of Jacobian. What is the definition of Jacobian? We have a need of two functions. So, say suppose we have a u function and v function, two independent variables x and y. Then we have to find the Jacobian of u and v with respect to x and y. That means this is denoted by del of u comma v divided by del of x comma y. So it is read it as Jacobian of u and v with respect to x and y. So its definition is this. We can write down this in expanded form. Del, this is, we can say that this is independent variable. Sorry, this is independent variable, this is independent variable, this is dependent variable. U and v. So what we firstly do, we have to take partial derivative of u with respect to x and partial derivative of u with respect to y, and both partial derivatives we have to write down in the first row. That means what we have to write down in first, del u divided by del x, del u divided by del y, and similarly you have to find del u v divided by del x, del v divided by del y, and write down these partial derivatives in second row, del v divided by del x, del v divided by del y. So this is the definition of Jacobian in case of two independent variables. Similarly, you can extend it on three variables, like as if you have u comma v comma w divided by del of x comma y comma z. It means that you have three independent variables, x comma z, and three dependent variables. Then Jacobian is defined as, firstly, take all partial derivatives with respect to x, with respect to y, with respect to z of u function, and then v, and then w. Firstly, take all partial derivatives of u and write down these partial derivatives in first row. Similarly, take partial derivatives of v and write down these partial derivatives in second row, and partial derivatives of w, write down these partial derivatives in third row. So in this way you will get the determinant. So this can be written as del u divided by del x, del u divided by del y, del u divided by del z. So del v divided by del x, del v divided by del y, del v divided by del z. And similarly, you can write down del w divided by del x, del w divided by del y, del w divided by del z. This is the definition in case of three variables. बस इसके बाद नहीं आएगा. Sim in similar fashion you can extend it on 4, 5. बट ये आपके लिए बस काफ़ी है, ये और ये 2, 3 के लिए काफ़ी है. उससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ना है. So just to see the examples to get more clarification on this topic, Jacobian. So what is the first example? See, the first example in is this. Example first is this. Example first. What is the example first? In polar coordinates. In polar coordinates. In polar coordinates, x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Show that हमें क्या दिखाना है? Show that Jacobian of x and y, Jacobian of x and y with respect to r and theta is equal to r. That means we need to show this. हमें ये दिखाना है. So तभी जाके आप ये कर सकते हो ना, जब आप इसका डेफिनेशन आपको पता है. पहले आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये किसके बराबर है. So then you can show it on this is equal to right hand side. So यहाँ पे क्या है, जो x है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल. किस पे ये डिपेंडेंट है? आर एंड थीटा पे. सिमिलरली वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल. किस पे है? आर एंड थीटा पे. सो दीज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स. यानी कि जो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा है कि इन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन डाउन इन पोलर फॉर्म. z इज इक्वल टू r e पावर i थीटा.
So this this is equal to r into its definition is cos theta plus iota sine theta. So this is actually the concept of polar coordinates in complex analysis. So these are called polar coordinates, r cos theta and r sine theta, and which includes r and theta. These are called polar coordinates. So how we solve this exercise? See. So firstly, what we have given, we have हमारे पास क्या है? हमारे पास है x is equal to r cos theta and हमारे पास है y is equal to r sin theta. ये हमारे पास है. It is given. ठीक. And we have to show it. And हमें क्या दिखाना है? And we have to show that. हमें क्या दिखाना है? We have to show that del of x comma y divided by del of r comma theta is equal to r. ये हमें दिखाना है. टेक लेफ्ट हैंड साइड. अब ले लो राइट हैंड साइड. हम दिखाएंगे किसके बराबर? राइट हैंड साइड. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज del of x comma y divided by del of r comma theta and this is equal to it is definition is इसकी definition क्या है? जरा बताओ इसकी definition. अभी मैंने रिकॉल del x divided by del r. del x divided by del r. Yes. Del x divided by del theta. Del y Del divided x by divided by del theta. Del y divided by del r. Yes. Del y divided Del y divided by del theta. it is the definition of Jacobi. So now emit star. So हमें क्या करना है? We calculate all these del x divided by del r, del x divided by del theta, and then substitute the star. So now यहाँ पे लिख सकते हो now साइड में हम लिख सकते हैं. हाँ, अब साइड में मत लिखना. एग्जाम हॉल में ऐसे मत लिखो क्योंकि यहाँ पे पेज टर्न करने से हमें प्रॉब्लम होता है. So now अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्टली चेक डेट. हमें कैलकुलेट करना है del x divided by del theta, del x divided by del theta. लेकिन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना del x divided by del theta. वो किसके बराबर आएगा? सॉरी, del x divided by del r हमें कैलकुलेट करना है. वो किसके बराबर आएगा? यहाँ से चेक कीजिए. R cos theta. और नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट to r इज 1. cos theta. यहाँ पे क्या बचेगा? खाली Minus. cos theta. नहीं, cos थीटा बचेगा. कहाँ आएगा माइनस? Cos theta बने constant. नहीं, आपको क्या करना है? विथ रेस्पेक्ट आर आपको करना है. del x डिवाइड बाई del r. आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है. किससे? r से. फोकस करो. सो दैट मींस दिस पार्ट इज कांस्टेंट एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रेस्पेक्ट r इज 1 cos थीटा. तो वहां पे क्या रहेगा? Cos theta. समझ आया? Yes sir. जा समझ आया कि नहीं? Yes sir. Yes sir. एंड नाउ कैलकुलेट del x डिवाइड बाई del थीटा. वो किसके बराबर आएगा? इसी को सेम वेरिएबल को आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. अब r कांस्टेंट है. अब r कांस्टेंट है. r तो लिख दो ऐसे ही. डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज Minus. Minus. so this is equal to minus times r sin theta. And similarly what we have to do? What we have to find? del y by del r. अब इस वेरिएबल पे हमें कोई काम ही नहीं है. अब इस पे आइए. y is equal to r cos theta. del y divided by del r is equal to shabash. Now Sin theta. constant and this is variable. Differentiation of r with respect to r is 1. तो वहां पे रहेगा sin theta. And similarly you have to calculate del y divided by del theta. This is equal to r differentiation of sin cos theta. So using these values in star, using these values इन कहाँ पे करना है आपको? यूज स्टार में कर लो. तो वहां से आपको क्या मिलेगा? del of x comma y डिवाइड बाय del of r comma theta इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? del x डिवाइड बाय del r किसके बराबर आया? cos थीटा के बराबर. इसी Cos theta. तरह del थीटा किसके बराबर आया? माइनस टाइम्स r sin थीटा. एंड इसी तरीके से del y डिवाइड बाय del थीटा r सॉरी वो किसके बराबर आया? sin थीटा and r cos. Sin theta. Now evaluate or evolve नहीं r cos theta. Evaluate the determinant. You know, अब वो evaluate determinant इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो. माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो. तो क्या आएगा फाइनली? r टाइम्स cos स्क्वायर थीटा. फिर एक तो ये वाला माइनस और फार्मूला का माइनस दैट इज प्लस Plus. r sin स्क्वायर थीटा.
तो आर आएगा कॉमन, तो वहां पे क्या बचेगा फिर? cos square theta sin square theta. दिस इज Cos इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आर आएगा कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर इंटू, ये किसके बराबर है? 1, नून आइडेंटिटी जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। दिस इज इक्वल टू आर एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया? side. अब लिखो जल्दी। कहा सभी ने? या सर एक मिनट। हाँ मोहसिन समझ आया? जी सर जी समझ गया सर। दोन दोन क्या दोनों क्लास मैंने कल दिया ना क्लास, मैंने दिया, मैं दी रात क्लास, लेकिन इश्यूज लैपटॉप बन रहा था स्टार्ट किन पर फोन से बैठा, लेकिन फिर भी मेरे को रिवाइज तत एक्सप्लेन तत हुक ना अस लिखित कहीं, दैट्स व्हाई रात के लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम, तो दैट्स रीजन बनो सो बनो रीजन, तो बेग दोस्त बो आउटसाइड वो बोस न घर कहीं, सो ये बनो रीजन क्लास को ना कहीं। अब ये समझ आया? अरे समझ आ गया यार, हमने पढ़ा था ना हाँ सर, वो तो बोलना इसलिए। कब? ये हमने पढ़ा आज तक? Method पर उसना rule. वो हमने सर रूल्स सीखा हाँ, लेकिन एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल कोई भी नहीं किया, एग्जाम्पल हमने आज ही बिल्कुल वैसे किया। ही है ना सर, आप टर्न कीजिए। ओके ठीक है, अब लिखिए सेकंड example, second in cylindrical coordinates. Okay, this is now second example in cylindrical coordinates. In cylindrical coordinates, x is equal to rho, huh? This is the definition of rho. Rho, this is the symbol for rho, rho cos phi, and y is equal to rho sin phi, z is equal to z. Show that, हमें क्या दिखाना है? Show that del of x comma y comma z divided by del ऑफ रो कमा फाई कमा जेड, ये हमें किसके बराबर दिखाना है? रो के बराबर दिखाना। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एंड रो फाई जेड। तो यहाँ पे हमें क्या सेम, मतलब जैकोबियन हमें निकालना है। So similarly you have to go, it is not too difficult, it is easy one. So solution is that, solution फॉर्मेट मैंने दे दिया किस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है। वी हैव x इज इक्वल टू रो, मतलब हाँ समझाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल एक्सप्लेन कैलकुलेशन है, रो साइन फाई एंड z इज इक्वल टू z। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना है? वी हैव टू शो दैट del of x comma y comma z divided by del of rho comma phi comma z is equal to rho, ये हमें दिखाना है इसके बराबर। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सो del of x comma y comma z divided by del of rho comma phi comma z, दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन। हाँ इसकी डेफिनेशन बता मुझे जल्दी जल्दी, क्या है इसकी डेफिनेशन? Del x by del बड़े रो del x divided by del rho
फिर del x divided by del phi, डेल नहीं, डेल एक्स कैसे, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल पाई, del x divided by del z, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल जेड एंड del y, डेल वाई डिवाइड बाई डेल रो, डेल वाई डिवाइड del y, बाई del y divided by del z, डेल जेड, इसमें del z divided by del rho, डेल रो del z divided by del phi, del z divided by del z. बाई डेल जेड डिवाइड बाई डेल जेड, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ इसका नाम स्टार रखिए। अब हमें जो भी यहाँ पे जरूरत है वो हमें कैलकुलेट करना है, कीजिए कैलकुलेट यहाँ पे, ठीक है ना, ऊपर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस है, करो कैलकुलेट। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट डेल एक्स डिवाइड बाई डेल पाई। नाउ डेल एक्स डिवाइड बाई डेल पाई किसके बराबर आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा, इससे मिलेगा, इस पे फोकस करो, सॉरी रो नॉट पाई। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्स डिवाइड बाई डेल रो, वो किसके बराबर आएगा, शाबाश, cos पाई के बराबर। ठीक है, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल फाई, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस साइन, हाँ, माइनस रो साइन फाई लिख सकते हैं। इज इट करेक्ट, समझ आता है कि नहीं, समझ आता है कि डाउट है, कि डाउट है। No sir, actually डेल एक्स डिवाइड बाई डेल जेड वो किसके बराबर है, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल जेड, दैट इज जीरो, क्योंकि इसमें जेड वेरिएबल ही नहीं है, दैट इज जीरो। सिंपली यू नीड टू फाइंड आउट डेल वाई डिवाइड बाई डेल रो, दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला छोड़ दो, आ जाओ इस पे, sin phi and del y divided by del phi is equal to differentiation of sine is cos, rho cos phi, del y divided by del z is equal to 0. Now you have to calculate third row of the determinant del z divided by del rho. अब इस पे आ जाओ, डेट इज 0 क्योंकि इसमें रो नहीं है, del z divided by del phi that is equal to 0, del z divided by del z that is equal to 1. So using these values in star, using these values in star, what we will get, अब मैं, मुझे मैट्रिक्स बताओ, हाँ लास्ट में लिखो जल्दी जल्दी, और मुझे मैट्रिक्स बताओ, cos phi करेक्ट बताना, cos phi, फिर आएगा माइनस रो sin phi, फिर आएगा 0। sin phi हाँ मुझे पेज टर्न करना है ना, लेकिन मुझे बताना, हाँ लिखा किया कंप्लीट, yes sir, ओके। अब बताओ क्या आएगा डिटर्मिनेंट, देयरफॉर del of x comma y comma z divided by del of rho comma phi comma z is equal to determinant of, अब बताओ डिटर्मिनेंट, cos phi cos phi minus rho sin phi rho sin phi 0 0 sin phi sin phi rho cos phi rho cos phi 0 हाँ 0 0 1 yes, this is the determinant। अब सॉल्व करो, you know the properties of determinant, expand along that row or that column which contains the maximum number of zeros, किस में maximum number of zeros है, या थर्ड कॉलम या थर्ड रो में। अब एज यू विश, जिस मतलब जहां से आपको एक्सपेंड करना आता है वहां से एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग along C3 कॉलम थर्ड, हाँ फर्स्ट वाला ये जो है ना एंट्री, इसका साइन चेक कीजिए, इस मतलब इट इज, अगर हम जनरल एंट्री चेक करनी है किसके बराबर है, A13, यानी कि फर्स्ट रो कॉलम थर्ड, दिस इज द मेन, हाँ एंट्री के ऊपर हमें क्या डालना है, -1 रेज्ड पावर जो सबस्क्रिप्ट में होते हैं 1 + 3 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब कर लो एक्सपेंड, 0 इंट क्या, किस तरीके से हमें एक्सपेंड करना होता है शाबाश, ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमें क्या करना होता है, ड्रॉप, तो वहां पे क्या बचेगा,
sin phi. Zero का चेक लिखना इसमें नशे जो मत करे हाँ खुद डायरेक्ट 1 0 का चेक लिखना हाँ, अब कर लो ना, मतलब अगर आपको भूल गए वो प्रॉपर्टीज एक्सपेंड करने का, प्रॉपर्टीज आपको याद ही नहीं है इसीलिए मैंने लिखा, अदरवाइज देयर इज नो नीड, क्योंकि हमें पता है 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे -0 फिर क्या क्या ड्रॉप होगा, ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला कॉलम यस, एंड ये वाला रो डिलीट होगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा फिर, cos phi माइनस रो sin phi, 0 0, लास्ट में +1 इंटू, और ये वाला कॉलम ये वाला रो खत्म होगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा, cos phi माइनस रो sin phi, ठीक, sin phi एंड रो cos phi। अब दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0 बाहर है, दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0 बाहर है, +1 इंटू, अब ये करो सॉल्व, cos phi इंटू cos phi, डेट इज cos रो इंटू cos स्क्वायर phi, फिर यहाँ पे क्या था, शायद माइनस है ना, यस यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस एंड माइनस फॉर्मूला का, डेट्स प्लस रो साइन स्क्वायर पाई। अब रो आएगा कॉमन, दिस इज इक्वल टू रो इंटू cos स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, and I know that this is an identity, this is equal to rho into 1, this is equal to rho, this is equal to right hand side। समझ आया? समझ आया? सर Yes, sir. ओके, क्या मैं पेन टर्न करूं कि नहीं, बता रहा आपने ये? यस किया था? यस सर। ओके, write down the next example, example third, in spherical polar coordinate, in spherical polar coordinates, in spherical polar coordinates, x is equal to r sine theta, x is equal to r sine theta cos phi, y is equal to r sine theta sin phi, sorry, sin phi, z is equal to r cos theta, r cos theta, that so that हमें क्या दिखाना है, del of x comma y comma z divided by del of r comma theta comma phi to r square sin theta, ठीक। So this is a question that you need to prove। Solution, सिमिलर स्टेटमेंट्स कम से कम ये आप लिख सकते हो एग्जाम हॉल में, अगर कुछ भी नहीं आया ये आपको आएगा, वी हैव, ये लिखना तो आएगा वहाँ पे, जो भी स्टेटमेंट में है वो वापस लिखना, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ नहीं आता है फिर वो कम से कम ये कोशिश करता है ना कि आंसर पेपर पे हम स्टेटमेंट लिख जाएंगे, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पे आप कर सकते हो। We have to show that we have to show that हमें क्या दिखाना है, just to see del of x comma y comma z divide del of r comma theta comma phi is equal to r sin square r square sin theta। एक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, del of x comma y comma z divided by del of r comma theta comma phi। So this is equal to, by it is apply it as definition now, del x divided by del r
del x divided by del theta, del x divided by del phi. Okay, this is phi. Now del y divided by del r, del y divided by del theta, del y divided by del phi, del z divided by del r, del z divided by del theta, del z divided by del phi. ये आपको नेम इट स्टार एंड कैलकुलेट कर लो क्या क्या जरूरत है वो कैलकुलेट करो। यहाँ पे आपको डेल एक्स डॉट बाई डेल आर जरूरत है, तो वो आएगा इसके बराबर साइन थीटा कॉस फाई, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट आर इज 1। सो कर लो कैलकुलेट। चलो यहाँ पे तो इतनी जगह ही नहीं है। करो कैलकुलेट। यहाँ पे हम कर सकते हैं कैलकुलेट, बाद में आप डिटरमिनेंट बना सकते हो, ठीक है ना। Firstly we need to calculate what we need to calculate now, del x divided by del r किसके बराबर आएगा, sin Sin theta theta cos theta. cos phi, ठीक है। Is it sin theta cos phi और मैंने गलत मत लिखा, एक मिनट प्लीज। sin theta cos phi, sin theta sin, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, यही है। फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, del x divided by del theta, वो किसके बराबर आएगा, del x divided by del theta। r तो एज कांस्टेंट है, cos phi भी एज कांस्टेंट है। Differentiation of sin theta is Cos theta. differentiation of sin theta is cos theta. Cos theta. Differentiation of cos theta is, so similarly you need to calculate del x divided by del phi। del x divided by del phi किसके बराबर आएगा, Or cos theta theta। Differentiation of cos is minus sin theta. minus sin, Sin phi. ठीक, minus sin। अब उतारो ये, हम पेस्ट करेंगे। And similarly you need to find del y divided by del r, del y divided by del theta and del y divided by del phi, ठीक, किया कंप्लीट। यस किया कंप्लीट आप लोगों ने, Sir. यस सर। ओके। y इज इक्वल टू r sin थीटा r फाइन, ओके ये है। मैं ऊपर लिख, आपको नहीं लिखना है ये, मैं खुद के लिए ही लिखूंगा यहाँ पे, r sin थीटा sin phi, sin phi, ओके। आपको कैलकुलेट अब क्या करना है, डेल y डिवाइड बाई डेल r किसके बराबर आएगा, sin थीटा sin phi, एंड डेल y डिवाइड बाई डेल थीटा किसके बराबर आएगा, डिफरेंस Or cos sin theta is cos theta or cos theta sin phi, phi. del y divided by del phi, differentiation of sin theta is cos theta sin theta cos phi, ठीक। अब वो क्या है, z किसके बराबर है, z इज इक्वल टू Or cos theta. r cos theta, अच्छा ठीक है, r cos theta। अब कैलकुलेट करो, क्या करना है आपको, कैलकुलेट del z डिवाइड बाई del r cos theta, del z divided by del theta, differentiation of sin cos theta is sin theta, हाँ, Minus sin theta. differentiation of cos theta is minus sin theta, okay, minus, ठीक है, यहाँ पे minus differentiation of sin theta, okay, and del z divided by del phi, phi तो है नहीं, वो जीरो के बराबर आएगा। using these values in star, star क्या बनेगा, therefore del of x comma y comma z divided by del of r comma theta comma phi is equal to, अब बताओ डिटरमिनेंट, आप फर्स्ट लाइन कम से कम बताओ जो मैंने कैलकुलेट उस पेज पे किया, कि मुझे पेज टर्न करना है, बोलो।
sin sin theta theta cos theta cos phi cos sin phi थीटा cos phi, फिर or cos phi sin theta और cos phi cos theta cos theta, फिर minus r cos theta sin phi. माइनस और cos theta sin phi, यही है। Sir, अब सेकंड वाला मैं खुद भी लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर है वो sin थीटा sin phi और टाइम्स cos थीटा sin phi और टाइम्स sin थीटा cos phi। ठीक, यहाँ पे cos थीटा माइनस r sin थीटा, फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है माइनस 0। ठीक, ओके। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट याद होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हमें यहाँ पे यूज करना है। अब देख लीजिए, अब कॉलम सेकंड पे नजर डालिए, इस कॉलम पे नजर डालिए आप, कॉलम सेकंड पे यहाँ operate क्या है row और second. दिस इज द कॉलम, हाउ इट्स रो, दिस कॉलम, दिस इज Columns operate करो. तो यहाँ नहीं, आप देखिए यहाँ पे दिस इज आर, हियर इज आल्सो आर, माइनस को छोड़ दो, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, डेट मीन्स वी कैन टेक आर आउट फ्रॉम द डिटर्मिनेंट। आर को हम बाहर ले सकते हैं फ्रॉम द डिटर्मिनेंट, समझ आया? सिंगल आर, नॉट आर क्यूब। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि अगर आउट कॉलम या थ्रू आउट रो कुछ कॉमन है, आप वो डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हो। फिर मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ बाहर सेकंड कॉलम से आर। एंड इसी तरीके से यहाँ पे चेक कीजिए, कहाँ पे, एक मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे गलत मत लिखा, साइन यहाँ पे क्या है, यही है, आपने ठीक बताया, ये वाला आपने ठीक बताया। Yes, sir, ठीक दोयम छ मेरे पास गलत शायद ये वाला गलत है। दोयम सो छ थीटा Cos और cos sin theta cos phi. Yes. ये है ना, यहाँ पे यस आना सर चाहिए, ठीक त्रेयम छ ठीक दोयम यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे माइनस टाइम्स और साइन थीटा आना चाहिए, फिर साइन फाई आना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए यहाँ पे। हमने गलत मत किया है ना, यहाँ पे आपने आपने ही गलत लिखा है ना, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। आपने क्या गलत बोला आपने? यस सर ठीक दोयम दोयम वो छ दोयम लो dx divided by del x divided by del theta यहाँ पे गलत है ना, ये कहाँ ठीक है, ये वाला आपने कहाँ ठीक बताया, ये आपने गलत बताया ना। आप खुद देखिए, आपको क्या बताना था, डेल एक्स डॉट में डेल फाई किसके बराबर आया, किसके बराबर आया वो, minus r sin theta sin phi आपने क्या बताया, आप ही बोलिए। I वन हाँ, तो बिलीव नहीं करना चाहिए आप पे भी, हाँ। आपने एक, सर तो दोयम वो छ तो दोयम अच्छा ये del वाला x divided by del सेकंड, theta सेकंड, यस, आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा इसलिए r cos phi फाई है ना, यही यही है ना, कॉस थीटा यहाँ पे, कॉस फाई यहाँ पे। इसे ठीक हाँ हम कर सकते हैं ना इंटरचेंज, इसमें क्या है। ठीक है, एक मिनट में चेक करो, यहाँ है ना, यहाँ पे क्या है, और कॉस फाई कॉस थीटा है ना, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल थीटा है ना, इसी के बराबर, और कॉस फाई कॉस थीटा, Cos theta. और कॉस फाई कॉस थीटा। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ इसी में डाउट था आपको एजाज? यस सर मोस्ट ऑफ क्या sin डाउट मतलब, किस में? sin theta सर ये उसमें लिख बताते हो अच्छा आप ही ने गलत किया। अब इस कॉलम थर्ड पे नजर डालिए, इसमें काम करो, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा,
दैट यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं ना कुछ साइन थीटा इंटू 0 हो, तो मतलब इट मीन्स दैट इस कॉलम थर्ड में हम क्या ले सकते हैं कॉमन, साइन थीटा। एंड होली और हम क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी हम आर डाल सकते हैं। आर साइन थीटा यहाँ से कॉमन आएगा और आर यहाँ से कॉमन आएगा, तो फाइनली व्हाट वी विल गेट आर और स्क्वायर साइन थीटा। एक आर यहाँ से एक आर, फिर यहाँ से साइन थीटा आर स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, अब लिखो और क्या रहेगा वहां पे रहेगा कॉलम, मैंने फर्स्ट कॉलम में मैंने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो वो ऐसे ही लिखो, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, फिर कॉस थीटा, और यहाँ पे अब क्या बचने वाला है, ठीक, कॉस फाई कॉस थीटा, कॉस फाई कॉस थीटा, ठीक, पे कॉस थीटा साइन फाई, फिर माइनस टाइम साइन थीटा। ठीक है, समझ आया। फिर लास्ट में बचेगा, लास्ट कॉलम में थर्ड कॉलम में लिखो क्या बचेगा, थर्ड कॉलम में साइन, आपको नीचे नहीं लिखना है, आप कॉलम में लिखना है, साइन फाई कॉस फाई 0। 0। समझ आया, ये समझ आया कि नहीं। यस सर। अब बताओ, ये मुझे ये डिटरमिनेंट मुझे फिर से बताओ कि मुझे यहाँ पे लिखना है, आप नहीं, आपको नहीं लिखना है, मुझे ये लिखना है, आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर बताओ, शाबाश, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा, अब ठीक बताना, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा, माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या आर को तो कॉमन था तो आर यहाँ आपको बताना था ना, यहाँ पे आपने इतना टाइम बताया फर्स्ट पहले, हाँ, कॉस था, फिर माइनस माइनस साइन थीटा, फिर 0। अब एक्सपेंड करो जहाँ, मतलब यहाँ पे आपको इजी लगेगा, मतलब इजी, आई थिंक डेट, या आपको कॉलम थर्ड से या रो थर्ड से ये इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चलो यहाँ पे हम करेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, मतलब आपकी मर्जी, जहाँ पे भी आपको आए, चाहे रो थर्ड से करो या रो फर्स्ट से भी आप कर सकते हो। इसका साइन फर्स्ट यूनिट चेक इट साइन, मतलब अगर हम मैट्रिसेस से कम डिटर्मिनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी प्लेस चेक कर लो, प्लेस क्या है, रो थर्ड, रो इंटू कॉलम 3 1, है ना, कॉलम रो थर्ड कॉलम कॉलम रो इंटू कॉलम, सो इसकी कॉर्ड -1 रेज्ड पावर 3 + 1, दैट मीन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ले लो आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे ही लिखो, ये बाहर रखो, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस थीटा एंड प्लस साइन है कॉस थीटा, फिर क्या करना है, ये वाला रो और ये वाला डिटर्मिनेंट हमें, सॉरी, ये वाला कॉलम डिलीट होगा, तो वहां पे क्या बचा, वो लिख दो, डिटर्मिनेंट में क्या बचा, कॉस फाई फाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन फाई एंड कॉस थीटा साइन फाई कॉस डिटर्मिनेंट, ठीक, फिर माइनस करके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, साइन, कॉस वजह जस्ट हाँ, ये साइन है तो कॉस आप ही ने बोला कुछ, मुझे क्या पता है, जो कॉस है। यहाँ पे कास्ट थीटा है, हाँ यहाँ पे कास्ट,
वही तो अदत कहते हैं बैठ तो के यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ये वाला ये रो cos थीटा sin phi sin थीटा हाँ यही है ना ये अच्छा cos phi cos थीटा आप ही ने बोला ना यश cos phi sin cos theta sin phi ये ठीक है आज ठीक मैंने लिखवाया ना आपको अब क्यों गलत बोलती हूँ का ये है ना cos थीटा sin phi इसमें क्या है यहाँ पे है ना cos phi cos थीटा sin है ना cos थीटा sin phi लेखनस मुझ का साइब आता है गसा ओवर आप चेक कर लो फिर यहाँ पे क्या रहेगा आप डिलीट हमें क्या क्या करना है ये वाला कॉलम ये वाला रो वहां पे cos कैसे हाँ ये cos तस कुछ तो del डिफरेंस वुचना del x by del theta एक गुना वाली बात वेट वन इजाज हम्म del x by del theta का बराबर अच्छा ये हमें चेक करना del है theta r cos phi cos theta इस तो पुनः तो असली ना तो sin नहीं ये कहाँ है डेल वाई से चेक कर लो वाई से कहाँ एक्स से करना है यश y को इस दो ही मिल में सेकंड रो है ना सेकंड del रो y divided by del theta छी ये वाला वैल्यू है ये वाला r cos theta sin अच्छा रो करो कोई कॉलम तो लास्ट रो ये करो लास्ट रो वैल्यू उसना मजबा वैल्यू सुचे रो 2 कॉलम 2 हाँ कहाँ पे डाउट है आपको आप डायरेक्टली मुझे बताओ किस टर्म में डाउट करो स्टेप ब्रो ना सुई का पर आप cos theta उनमें से कस में डाउट बकर सुई पॉइंट है ये करो स्टेप ब्रो हाँ ठीक इसे पेट कैसे लिखूं इसे चेडित हूं पेट कहने आते हैं sin थीटा cos phi लिखने को ना साइन थीटा कॉस फाई हाँ अब तो cos phi sin थीटा कॉस फाई साइन थीटा अब तो cos थीटा sin थीटा कोई अब तो cos phi cos थीटा कॉस थीटा कॉस फाई यहाँ पे cos phi cos थीटा चाहता आपने तेज उसने कॉमन कर एक मिनट कॉस थीटा कॉस फाई है ना यहाँ पे हाँ कॉस कॉस फाई कैसे को sin कहाँ पे मैंने लिखा साइन आप ही ने बोला मैंने कहाँ लिखा कॉस थीटा कॉस फाई ये तो बिना बैठ cos आप ही ने बोला ना मैंने कहाँ लिखा ठीक लिखा ना आप भरोसा ही नहीं कर रहे हैं आप लोगों पे बिल्कुल आप लिख कर भी गलत बोलते हो यहाँ पे ना cos फाई साइन cos फाई cos थीटा cos फाई cos थीटा कर देगी जैसी वाला कहाँ पे साइन थीटा साइन डेल वन के लिए आपने गलत अब क्यों गलत बोलते हो हाँ क्या हुआ आपको मैंने ठीक लिखा है बैक पेज में यस सर साइन थीटा साइन फाई यहाँ पे है ये वाला यस सर साइन थीटा साइन फाई एक मिनट sin थीटा cos phi एक आपने आके आपने गलत क्यों लिखा है आपने गलत लिखा और गलत बोला फिर ये तो पूरा आप रब कर रहे हैं ना और आकिब आपने गलत क्यों बोला ये पूरा मैट्रिसेस हाँ आपको क्या हुआ? sin cos थीटा ना आपने गलत बोला नहीं पर वो जो पे डाला अब बताओ क्या कोई आर आप मैं ये फिर से बताओ वापस मुझे क्या है साइन थीटा कॉस फाई आप चेक कर लेना मैं ठीक लिखूं या गलत लिखूं कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा फिर यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाई अब बताना मुझे अगर मैंने कहीं पे गलत लिखा कॉस थीटा साइन फाई एंड माइनस साइन थीटा माइनस साइन सॉरी माइनस साइन थीटा तो मैंने कॉमन लिया साइन फाई
माइनस और फिर cos पाई 0। क्या ये ठीक है? मैंने ठीक लिखा? ओके, नाउ expanding along R3, कर लो R3 expand along row third, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब ये किसके बराबर आएगा? r स्क्वायर sin थीटा ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा। डिटरमिनेंट क्या क्या हमें डिलीट करना है? दिस कॉलम फर्स्ट एंड दिस कॉलम, तो वहां पे क्या रहेगा? cos थीटा cos फाई माइनस sin फाई cos थीटा sin फाई cos फाई, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस sin थीटा इंटू, ये वाला डिलीट कर लो, ये वाला कॉलम। अब क्या बचेगा वहां पे? sin थीटा cos फाई माइनस sin फाई। अब क्या ठीक, लास्ट वाला मैंने डिलीट किया, sin थीटा sin फाई फिर cos फाई। अब लास्ट में प्लस 0 इंटू, सो जो भी होगा वो हमें ज़रूरत नहीं लिखना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही बनेगा, क्योंकि लास्ट एंट्री 0 है ना। दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर sin थीटा ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो, यहाँ पे cos थीटा फिर आएगा cos स्क्वायर फाई, ठीक, cos स्क्वायर फाई फिर प्लस cos थीटा sin स्क्वायर फाई प्लस sin थीटा, इस पे आ जाओ, ब्रैकेट स्टार्ट sin थीटा cos स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस sin थीटा sin स्क्वायर फाई ब्रैकेट क्लोज, तो 0 लास्ट में 0 आएगा, छोड़ो। एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर sin थीटा। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? cos थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और cos बाहर है, cos स्क्वायर आएगा, ठीक। अब वहां पे क्या रहेगा? cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन देख लो, क्या आएगा कॉमन? प्लस sin स्क्वायर थीटा, वहां पे हमें क्या लिखना है फिर? cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। अब फर्दर इवॉल्वेट करो, आई नोटेड दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर, और वहां पे बचेगा फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 अगेन, तो वहां पे क्या बचा फाइनली? r स्क्वायर sin थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड। ओके, समझ आया? लिखा सभी ने? यस सर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये कंप्लीट किया सभी ने कि नहीं? अरे 1 मिनट पेज कर रही थी। ओके, ओके सर। next example, if
y1 is equal to x2 x3 divided by x1. y2 is equal to x3 x1 divided by x2. y3 is equal to x1 x2 divided by x3. Show that the Jacobian of y1 y2 y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 x1 x2 x3 is 4. that is हमें शो क्या करना है, del of, ये समझो, y1 y2 y3 डिवाइड बाय del of x1 x2 x3 इज इक्वल टू, हमें किसके बराबर दिखाना है, 4 के बराबर. सो इट इज सॉल्यूशन. आई थिंक दैट ये आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वोशंट का कंसेप्ट है. चलो मैं दिखाऊंगा वो, अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है देन यू कैन डू इट. अगर वी हैव y1 is equal to x2 x3 divided by x1, y2 is equal to x3 x1 divided by x2, and y3 is equal to x1 x2 divided by x3. We have to prove that क्या हमें प्रूव करना है, Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is equal to 4. Similarly take left hand side. ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले लो once again. take left hand side. take left hand side, वो किसके बराबर है, del of y1 y2 y3 divided by del of x1 x2 x3. Its definition is del of y1 divided by del of x1, del of y1 divided by del of x2, del of y1 divided by del of x3. इसी तरीके से del of y2 divided by del of x1, del of y2 divided by del of x2, del of y2 divided by del of x3, del of y3 divided by del of x1, del of y3 divided by del of x2, del of y3 divided by del of x3. Now calculate. Now आपको कैलकुलेट क्या करना है, del y1 divided by del x1. अब फर्स्ट वन इज y1 is equal to x2 x3 divided by x1. अब मुझे बताओ किसको आता है डिफरेंशिएशन, del y1 divided by del x1 किसके बराबर आएगा, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो हाथ ऊपर कर लो. y1 del y1 divided by del x1 किसके बराबर आएगा, with respect to x raised to x1 raised to power minus 1. Now 1 by x 1 by x such a differentiation as minus 1. I have x1 x2 x3 Minus x raised to power minus 2. और you नहीं, x1 x3 yes किस
डिफरेंशिएशन क्विकली और ऊंची आवाज में बोलो क्या आंसर क्या है। x1 स्टार्ट करें विद रेस्पेक्ट x1 डरने के बगैर। ये वाला है, ये वाला पता है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x किसके बराबर होता है? -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये हिंट है आपके लिए, और बताओ आंसर। log minus x नहीं, log कहाँ? log, it is not Integration. integration, it is differentiation. It is differentiation is -1 divided by x square. Differentiation is, आप यहाँ पे बताओ इसका differentiation with respect to x1। फिर minus x raised to power -2 क्या हुआ आपको? x1 x2 x3 is as constant, constant ये और same डिफरेंशिएशन ये कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? इसकी डिफरेंशिएशन है ना -1 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर। देखो ना लेके तार से पावर वो हेयर खा लो वहां पे क्यों ऊपर लेना है? तो ऐसे तो बना -2 बना थी -x raised to power -2 आपने वो नहीं बोला ना, ये x2 x3 के साथ। so शेयर पाई है so constant नो, समझ आया हर किसी को कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें? आपको पता है ये क्यों होता है इसके बराबर? हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x इज 3। हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़्ड टू पावर -1। हम ऐसे लिख सकते हैं पावर डाउन पावर -1। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। yes sir yes So, वही तो मैंने यहाँ पे यूज किया है। एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है? डेल y1 डिवाइड बाय डेल x2। अब बताओ, del x2 यहाँ करो x3 by x1 एग्जैक्टली। डेल y1 डिवाइड बाय डेल x3 बताओ, x2 by x1 x2 डिवाइड बाय। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है वो क्या है? y2 इज इक्वल टू x3 x डिवाइड बाय x2। 2 अब x2 रेट आपको क्या करना है? फर्स्ट डेल y2 डिवाइड बाय डेल x1 बताओ, that is x3 by x2 x3 डिवाइड बाय x2। 2 डेल y2 डिवाइड बाय del x2 x2 बताओ, to minus x3 x1 डिवाइड बाय x2। x3 x1 minus 1 dot by x raised to power -2 ठीक, फिर x2 raised to power -2 y2 डिवाइड बाय डेल x3 x1 डिवाइड बाय x2। समझ आया? समझ आया कि नहीं? yes sir अब कैलकुलेट करो। y3 किसके बराबर है? एक मिनट। y3 इज इक्वल, ये नहीं लिखना आपको, हाँ, मैं अपने के लिए। अब कैलकुलेट करो, डेल y3 डिवाइड बाय डेल x1 x2 by x3 x2 डिवाइड बाय x3, डेल y3 डिवाइड बाय डेल x2 x2 x1 डिवाइड बाय x3 dot by डेल x3 y3 डिवाइड बाय डेल x3 dot by माइनस x1 x2 डिवाइड बाय x3 स्क्वायर, using these values and star। therefore हमें क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे डेल ऑफ y1 y2 y3 डिवाइड बाय डेल ऑफ x1 x2 x3 इसके बराबर आएगा। अब बता, किसी ने पूरा लिखा? ये वाला पेज किसने पूरा लिखा? जिसने लिखा minus आएगा। ये किया काम, ये वाला पेज। और ठीक ठीक बताना इस टाइम, हाँ, अच्छे से बोलना 37 पड़ता है।
किया कंप्लीट ये पेज? यस सर। अब बताओ फर्स्ट फर्स्ट रो बताओ, फर्स्ट रो minus x2 x3 3 माइनस x2 x3 divided by x1 square, x1 स्क्वायर x3 divided by x1, x3 डिवाइड बाय x1 x2 divided by x1, x2 डिवाइड बाय x3 x1। x2 अब सेकंड रो बताओ। x3 divided by x2 हम्म, minus x3 x1 हम्म, divided by हम्म, x2 square, हम्म, x1 divided by x2, x1 डिवाइड बाय x2 फिर x2 divided by x3, x2 डिवाइड बाय x3 x1 divided by x3 x3 minus x1 x2 x1 x2 x3 square. ये ठीक है ना? Yes, sir. अब देख लो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, x1 स्क्वायर, x1 वो प्रॉपर्टी अप्लाई करो फिर से। यहाँ पे क्या है x1, यहाँ पे क्या है x1। x1 क्या मैं अगर ऐसे लिखूं, अगर ऐसे लिखूं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको कोई दिक्कत है? अगर मैं यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे स्क्वायर करूँ, यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे स्क्वायर करूँ, क्या इसमें कोई दिक्कत? no sir, तो फिर कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट रो से कॉमन क्या आएगा बाहर? x1 square, लेकिन कहाँ पे डिनोम, हमें ये 1 divided by x1 square डिनोमिनेटर, हाँ इस फॉर्म में हमें लिखना है ना जरूरी, x1 स्क्वायर है ना। ये कहाँ, मतलब ये डिनोमिनेटर में आता है ना कॉमन, 1 डिवाइड बाई x1 स्क्वायर कहाँ पे आता है? 1 डिवाइड बाई x1 स्क्वायर आता है ना कॉमन, 1 डिवाइड बाई, नहीं sir क्या डाउट? डाउट? sir डाउट है? ठीक है sure ओके, नहीं किसी को डाउट है सच बताओ अगर डाउट है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जरा यहाँ पे देखो, यहाँ x1 1 डिवाइड बाई x1 स्क्वायर इनटू करके हम लिख सकते हैं ना माइनस टाइम्स x2 x3, पॉसिबल है ना? तो इसी तरीके से ये टर्म भी मॉडिफाई करो, इसी तरीके से ये टर्म भी मॉडिफाई करो, तो लास्ट में क्या आएगा कॉमन? 1 divided by x1 square समझ आया? yes sir, सर ये स्क्वायर कैसे मतलब है मैंने लिया ना, एक्चुअली इट इज गिवन, ये गिवन था x1, yeah, may more than the numerator, फिर sir. मैंने यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे उस additional additional यहाँ पे क्या था टर्म, जो ओरिजिनल टर्म थी ना वो थी x3 डिवाइड बाई x1, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई x1 किया और डिवाइड बाई x1 किया, तो वहां पे क्या आएगा x3 x1 डिवाइड बाई x1 स्क्वायर। समझ आया? यस सर ओके, यहाँ पे अब x2 स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर बनाओ, आपको क्या करना है, x2 मल्टीप्लाई एंड x2 डिवाइड, स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे क्या आएगा x2, फिर यहाँ पे x2 स्क्वायर आएगा। तो इसमें क्या आएगा कॉमन, इस वाले में 1 divided by x2 square x2 square, 1 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर। एंड सिमिलरली थर्ड पे अप्लाई करो, x3 स्क्वायर मुझे बनाना है, x3 यहाँ पे x3 डालो, सॉरी यहाँ पे x3 स्क्वायर लिखो। अब यहाँ पे x3 डालो, यहाँ पे x3 स्क्वायर बनाओ, फिर x3 स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। अब लिखो, और इसमें क्या आएगा कॉमन, अब थर्ड रो 1 1 डिवाइड divided by x3 square x3 स्क्वायर, तो जो बचेगा वो लिख दो। अब क्या बचा वहाँ पे, माइनस टाइम्स x2 x3, फिर x3 x1 x2 x1। अब
रो बताओ। x2 x2 minus माइनस x3 x1 x1 x2 x2 ठीक, x2 x2 x3 x1 x3 यहाँ पे क्या आएगा माइनस टाइम्स x1 x2 x2 ठीक। इतना तो ठीक है। yes sir ऑपरेट अब क्या कोई पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है x3 x1, यहाँ पे क्या है x3 x, ऑपरेट रो यहाँ पे सेकंड क्या है, थर्ड करो एडिंग। नहीं ये जरूरी नहीं, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जीरोस बनाओ। अगर हम ऐड करेंगे ना किसको, इस वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो आएगा, जीरो जीरो क्या आएगा जीरो आएगा। फिर यहाँ पे टाइम्स आएगा ना, एडिंग कर लो रो फर्स्ट एंड रो, यानी कि आप यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई कर लो रो ऑपरेशन। ऑपरेट आपको क्या करना है इस तरीके से, अगर आपको याद है ऑपरेट R1 में चेंज लाओ, मैंने क्या किया R1 प्लस R2 किया, और दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा 1 डिवाइड बाई x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। तो किस में चेंज आया जाएगा R1 में, ठीक है ना। अब बताओ R1 को किसके साथ ऐड करना है R2 के साथ, तो क्या आएगा x2 माइनस x2 प्लस माइनस x2 x3 प्लस किसके साथ करना है x3 x1 के साथ, दैट इज जीरो, है ना, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा जीरो। 0 फिर 2 टाइम्स x1 x2, 2 टाइम्स x1 x2 x2, और सेकंड रो मुझे ऐसे ही बताओ जिस तरीके से है वैसे ही बताओ, x3 x2 x2 x3 अब सेकेंड्स में थोड़ा लिखूं, ठीक। माइनस x1 x3 हम्म x1 x2 हम्म x2 x3 x2 x3 x1 x3 x1 x3 माइनस x1 x2 अब करो एक्सपेंड का अलोंग जीरो है, किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, फर्स्ट रो एक्सपेंडिंग along R1 प्लस माइनस प्लस। तो फाइनली अब आपने सीखा, अब आपको रिकॉल हुआ द प्रॉपर्टीज, यहाँ पे स्क्वायर। अब आपको याद आया, क्योंकि हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाओ, हमें क्या लिखना है 2 टाइम्स x1 x2, फिर ये वाला और ये वाला डिलीट करना है, तो वहाँ पे क्या रहा x1 x2 x1 x3 स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x1 x2 x3 स्क्वायर, फिर प्लस क्या आएगा x1 x2 x3 स्क्वायर, ये आएगा। फाइनली यू विल गेट what you will get 1 divided by x1 square x2 square x3 square into twice x1 x2, यहाँ पे लाइक टर्म है ना, यहाँ पे देखिए ये लाइक टर्म है x1 x2 स्क्वायर x3 को भी है, तो दैट इज 2 टाइम उनको ऐड हो जाएगा x1 x2 x3। अब फाइनली मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर इंटू 2 2 4
x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा तो दिस इक्वल टू 4 राइट है। समझ आया? समझ आया? समझ आया यार किसी को कि नहीं? समझ आया? Yes, sir. ओके, राइट डाउन वन असाइनमेंट एंड नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन आया वो हम करेंगे बाद में, लेकिन फर्स्ट राइट डाउन असाइनमेंट फॉर यू। ये खुद कर रहे हैं ना, ठीक है ना, ये मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ ओ ठीक। Okay, sir. नेक्स्ट राइट डाउन द होम असाइनमेंट, लेकिन ये असाइनमेंट तो नहीं रहना चाहिए। कर हाँ करो गुड। इफ इक्वल टू x plus 3y square minus z cube, v is equal to 4 times x square yz, w is equal to yz square minus xy, evolve del of u comma v comma w by del of x comma y comma z एट किस पॉइंट पे आपको इवॉल्वेट करना है एट 1 comma -1 comma 0। सिंपली फर्स्टली इवॉल्वेट दिस, वहाँ पे आपको x मिलेगा वहाँ पे 1 डालो, y मिलेगा वहाँ पे -1 डालो, जहाँ पे z मिलेगा वहाँ पे 0 डालो। दैट इज सिंपल, इट इज असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। एंड इट्स आंसर इज 20, आंसर लिख दो, आंसर आएगा 20 लास्ट। एंड नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन आया एग्जाम में, दिस इज द क्वेश्चन आपके पेपर में जो आया, इफ u is equal to x square minus y square, v is equal to 2xy, and x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, find। आपको क्या निकालना है, डेल ऑफ u कमा v डिवाइड बाय डेल ऑफ r कमा थीटा, ये आपको निकालना है, ठीक। अब दो तरीके हैं यहाँ पे, मतलब आई थिंक दैट सिंपल, वैसे ही मतलब x को वैल्यू डाला यहाँ पे। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे ना, ये किसके बराबर आएगा, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेल यू डिवाइड बाय डेल आर, ठीक, डेल यू डिवाइड बाय डेल थीटा, डेल वी डिवाइड बाय डेल आर, del v divided by l theta, it is definition, so it means that u should be functioning in terms of r and theta, लेकिन u किस में फंक्शन है, x and y किस में फंक्शन है। अब कर लो सॉल्यूशन, हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट किया, वी हैव क्या है हमारे पास, वही इज इक्वल टू x, सवाल उसमें देखें के साथ से सवाल उसमें क्या मतलब, हाँ बताओ कि डेल
x divided by del y divided by del u divided by del v. नहीं, देखो हमें क्या करना है, v इज इक्वल टू हमारे पास ये है ना, और क्या है हमारे पास कामा करके, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक। आप यहाँ पे आप क्या कर लो, यूजिंग x एंड y इन फर्स्ट टू इक्वेशंस, आपको क्या आएगा, फाइनली यू विल गेट, इसका नाम फर्स्ट रखिए, इसका नाम सेकंड रखिए, इसका नाम थर्ड रखिए, इसका नाम यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट एंड फोर्थ इन सेकंड। क्यों हमें ये करना है, हमें ये क्यों करना है, बिकॉज यू विल कन्वर्ट इट इनटू r एंड थीटा, we will convert it into r and theta। सेकंड मेथड भी है, हम इस मेथड से चेक कर लेंगे, तो क्या आएगा फिर, तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू x की जगह में क्या लेना है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u एंड v किसके बराबर आएगा आपको, एंड थोड़ा मॉडिफाई कर लो, मॉडिफाई करने से कुछ नहीं होता है, r स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन इजी, sin स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड इसी तरीके से एंड v इज इक्वल टू, v किसके बराबर हमें आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह में क्या डालना है, और cos थीटा, एंड y की जगह में क्या डालना है, और sin थीटा। फाइनली यू विल गेट ट्वाइस व्हाट, r स्क्वायर cos थीटा, sin theta। ठीक। एंड यहाँ पे आप फिर लिख सकते हो r स्क्वायर sin थीटा, क्यों ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, Twice sin theta cos theta is equal to sin 2 एंड theta. यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं, आप समझो, यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं r स्क्वायर cos 2 थीटा, लिख सकते हैं, इज इट पॉसिबल, याद है किसी को आइडेंटिटी, This ये किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा, cos theta minus sin theta. हाँ बोलो फिर, वापस बोलो, यार minus का वन कर minus r square. यही फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, वो cos 2 थीटा के बराबर होता है, और sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, ट्वाइस sin थीटा cos थीटा। है ना, पता है कि नहीं, पढ़ा कहीं पे, पढ़ा आपने कि नहीं। Yes, sir. अब u फाइनली u किसके बराबर आया, r स्क्वायर cos 2 थीटा, v किसके बराबर आया, r स्क्वायर sin 2 थीटा, सो फाइनली देयरफॉर u इज इक्वल टू, u किसके बराबर आया, r स्क्वायर cos 2 थीटा, एंड v किसके बराबर आया, r स्क्वायर sin 2 थीटा, है ना, मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया यहाँ पे और कुछ नहीं किया, यही है एग्जैक्टली। अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या हमें डेल ऑफ u कमा v डिवाइड बाय डेल ऑफ r कमा थीटा, यही, यस, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, डेल u डिवाइड बाय डेल r, डेल u डिवाइड बाय डेल थीटा, डेल v डिवाइड बाय डेल r, डेल v डिवाइड बाय डेल थीटा, नेम इट स्टार। अब कैलकुलेट करो, नाउ डेल u डिवाइड बाय डेल r किसके बराबर आएगा, ट्वाइस r cos 2 थीटा, डेल u डिवाइड बाय डेल थीटा कैलकुलेट करो, r स्क्वायर cos, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा,
डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा माइनस, यही है sin थीटा या माइनस, माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा, एग्जैक्टली। एंड इंटरनल क्या होगा 2। एंड कैलकुलेटर में क्या करना है, डेल v डिवाइड बाई डेल r इज इक्वल टू ट्वाइस r sin थीटा, del v divided by del theta, differentiation of cos theta is sin theta is cos theta, twice r square cos 2 theta, using these values in star, using these values in star, तो क्या मिलेगा आप, del of u comma v divided by del of r comma theta is equal to determinant of del u divided by del r किसके बराबर आया, twice r cos 2 theta, del u divided by del theta twice r square sin 2 theta, del v divided by del r twice r sin 2 theta, del v divided by del theta twice r square cos 2 theta, ठीक। सर ये माइनस डेल यू डिवाइड बाय डेल थीटा माइनस 2 r स्क्वायर sin 2 अच्छा थीटा। ठीक, यहाँ पे माइनस, एग्जैक्टली दिस इज करेक्ट। अब क्या आएगा कॉमन, लॉन्ग रो सोचो, चलो सोचो अलॉन्ग द कॉलम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 क्या आएगा बाहर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 आएगा बाहर, 2 2 r into 4, तो फाइनली व्हाट वी विल गेट 2r, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे क्या आएगा कॉमन 2r स्क्वायर सेकंड कॉलम में, तो क्या रहेगा लेफ्ट, cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 theta, this is equal to what, 2 2 r 4 r cube into क्या आएगा cos square 2 theta plus sin square 2 theta 4 r cube into 1, तो फाइनली 4r। सो कौन सा मेथड आप सिंपल आकिब, पे देखा वही मेथड सिंपल है, ये वाला मेथड सिंपल है, वहां पे आपको 2 बार कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मैंने एक ही बार कैलकुलेट किया जैकोबियन, वहां पे उन्होंने चेन रूल यूज किया, मैंने चेन रूल यूज नहीं किया। समझ आया हर किसी को कि कहीं पे डाउट है, ये क्या आया क्वेश्चन एग्जाम में, जो प्रीवियस पेपर था ना उस पे ये क्वेश्चन है, समझ आया हर किसी को कि कहीं पे डाउट है, अब बताओ मुझे। चलिए ठीक है, समझ आ गया। हाँ कहाँ पे डाउट है मोहसिन, मैं बोला सर ये आओ समझ, अच्छा समझ आया, सर पेज का टर्न, हाँ हाँ सर पेज टर्न कीजिए। ओके। इसमें दूसरा मेथड भी है ना, वो मुझे लगता है वो समथिंग लेंथी है, मतलब इग्नोर दिस, आप सिंपल है ये कीजिए, ठीक है ना, जो बुक पे है मैंने वो नहीं किया है, मैंने सोचा खुद ये हम इसे इवॉल्वेट कर सकते हैं, मैंने किया वैसे ही वो। चलो ये यूट्यूब पे मिलेगा आपको ये लेक्चर, मैंने रिकॉर्ड किया है ये, आप फिर से देख सकते हो अगर कहीं पे डाउट है। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब